Aufnahme. Mit R. Ein Wort mit R bitte. फर्स्ट वर्ड आप आर से स्टार्ट कर दो. रिस्टिश. रिस्टिश. ओके. रिस्टिश und Reise. Ich nehme dann Reise. Okay, klar. Die Reise. Next, mit A. Okay. Essen, Elephant, Entschuldigung. Okay. जो वर्ड आगे हैं उनमें से मैं एक चूज करूंगा. मे बी. So, Sie haben gesagt Elephant, Entschuldigung und Eis. So, ich nehme dann Elephant. Der Elephant. Die Reise. Next, mit T. Tanzen ist ein Verb. Verb akzeptieren wir nicht. Toll kann sein, aber Sie haben auch Tanz gesagt. Tanz geht schon. Tanz. Okay. Der Tanz. Mit Set. Ein Wort mit Set bitte. Zahlen. Zeit. Zimmer. 12. Okay. Zurück. Okay. Dann ich nehme Zeit. Die Zeit. Mit T. Die Tür. Okay. Die Tür ist zu klein. Also mehr als 3 vielleicht. Tier. Ja, Tier ist schon. Also mit 4. Tuk-Tuk. Tuk-Tuk und Tier. T. Also traurig. Dann nehme ich Tuk-Tuk. Tuk-Tuk. Tuk-Tuk is tempo. 3-wheeler. Okay. Also dann mit K. Mit K bitte. Küche, Kamera, Käse. Okay. Küche, Kamera, Käse. Katze. Okay. Ich nehme dann Käse. Der Käse. Okay. Mit A. Erfahrung. Okay. Mit A. Erfahrung. Englisch. Okay. Erfahrung. Englisch. Erklären. Verb nehmen wir nicht. Ja. Erfahrung und okay. Entlang Präpositionen, Namen. Okay. Ich nehme Erfahrung. Erfahrung. Also die Erfahrung. Ja, next. Mit G. Okay. Geschwister, gegenüber. Glücklich. Geschäft. Ich nehme dann Geschäft. Das Geschäft. Okay, mit T. Next. Ein Wort mit T. Tag. Treffen ist Verb auch. Er sagt Tever. Tever ist auf Hindi, na? Ah. Okay. Und? Okay. Was T haben Sie gesagt? T wurde früher aufgesprochen. T तो किसने पहले भी बोला था, मैंने लिया नहीं, वो अलग बात है. ओके. T
Tisch, Tisch, Tasche, traurig, Tablet. Okay, ich nehme dann Tablet. Das Tablet. Okay, mit T sagt man Tasche und Tasche, die Tasche, ja, und Tafel, okay, Tasche, Tafel. Noch jemand? Tabletten. Tür ist nur mit 3. Okay, ich nehme dann Tasche. Die Tasche. Mit E jetzt. Weiter. E. Tasche. Also mit E. Next. I. I ist zu klein. Geht nicht. Mindestens 3 Alphabet. Mindestens. Oder mehr als 3. Eis. 3. Okay. Englisch. Englisch. Eier. Eier ist Plural. Okay. Was? Eltern. Okay. Die Eltern. Ja. Eltern. Die Eltern nehme ich. Die Eltern. Okay. Jetzt mit N. Noida. Okay. Noch einmal. Nachbar. Ehrlich gesagt, ich nehme meistens also Nomen, na? Nachbar. Okay. Der Nachbar. Nachbar. Name. auch wichtig. आपने नोटिस किया होगा तो कोई एडजेक्टिव वगैरह बोल रहा है, मैं हो सके जहाँ तक उसको अवॉइड करने की कोशिश कर रहा हूँ. कोई बहुत छोटा बोल रहा है, कोई वर्ब बोल रहा है तो मैं उसको ले नहीं रहा. आई एम ट्राइंग टू टेक नाउन्स इफ पॉसिबल. या अगर आप में से कोई नहीं बोलेगा तो फिर मैं एडजेक्टिव वगैरह को लूंगा. सो नाखबार, देर नाखबार. या नेक्स्ट मिट एर. रॉक, रेगन. रेगन इज डन वर्ब. aber rock. Rat. Rat ist zu klein. Regenschirm. Regenschirm und Rock. Regenschirm, Rock. Regenschirm, Rock. Ich nehme Regenschirm. Okay. Der Regenschirm. Der Regenschirm. Mit M. Next. Mantel, Mutter. Mantel und Mutter. Mantel, Mutter. Musik. Okay, Montag. Ich nehme dann Mantel. Der Mantel. Montag, Mutter, Musik war auch. Langsam, Lampe. Löwe. Okay. Ich nehme dann Löwe. Mit E. Ja. Mit E. Mit E. Elephant haben wir. Erfahrung. Etwas. Okay, wir haben etwas. Und? Eingaben. Okay. Okay. 100. Okay. Angaben. 1. Angaben. Okay. Erinnerung. Erinnerung. Ich nehme dann Erinnerungen. Erinnerung. Die mit Doppel N. Erinnerung. Yaden. Yad. Erinnerung. Okay. Next. Memory. Klar. Next. Mit G. Mit G haben wir glücklich. Wir sind glücklich. Gabel. Okay. Glücklich, Gabel. Glücklich, Gabel und
ग्रिप है, ओके, ग्रिप है, ग्रुन, ich nehme dann Grippe. Ich habe Grippe. Okay, next. Mit E, nochmals. Entschuldigung. Einkaufen ist das Verb auch. Erbe, okay. Erbe. Dann nehme ich, was noch? Eltern ist schon da, wir nehmen dann Erbe. Erbe. Also was ich von meinen Eltern bekomme oder was eigentlich weitergeht, positiv etwas. Erbe. थाती, हमारी जैसे हेरिटेज, घर वालों से हमको जो घर वगैरह मिलता है, एर्बे, das geht. Ja, England ist ein Nomen, na? Heritage, Virasat, das Erbe, auch vielleicht der Erbe oder auch andere. Okay, und mit E nochmals, mein Gott, mit E, Erbe, nochmals Erbe. Was sagen Sie? Erledigung, okay. Endung, ja, auch. Endung. Ich nehme dann Endung. Adjective Endung. Okay. Mit G jetzt. Gemüse, ja. Gemeinsam. Gemüse. Okay. Ich nehme dann Gemüse. Kein Problem. Gemüse. Klar. Okay. Und mit E. Erbe. Erbe haben wir genommen. Ende. Okay. Ende. Mit E und nochmals E. Ende. Ich nehme dann Ende. Erde haben Sie gesagt. Okay, ich dachte das Ende. Sie sagen aber Erde. Aber dann ist nochmals E. Oh, schade. Die Erde, das Erde. Das Ende, die Erde. Und Erbsen sagen Sie? Erbsen, okay. Und? Einkaufszettel, okay, richtig. Wir nehmen Einkaufszettel dann. Das Zettel. Shopping List. Shopping List. Okay. sagt Leute nicht. Okay. Lehrer. Okay. Und? Was? Landkarte? Landwirtschaft. Okay, das ist dann besser, ne? Landeskunde. Jolis, Landeskunde oder Landwirtschaft? Landwirtschaft, okay. Landwirtschaft. Dann ist nicht E am Ende. Wenn man Landeskunde schreibt, dann kommt immer E, immer wieder E. Und das ist dann problematisch. Okay? Tripper. Mit T. Tafel, Telefon. Okay, traurig. T-Shirt. Ich nehme dann. Was haben Sie gesagt? Was ist Boise? Biose? Also Adjective Biose. Okay? Wir haben bis jetzt Nomen genommen. Wir haben Nomen genommen. Nehmen wir vielleicht Nomen. Was war es mit T? Nochmals? Hat jemand Tante gesagt? Oder was noch? Haben Sie noch etwas? Oder nur Tante? Oder Tute?
Tute ist auch gut. Tute. Am Ende kommt E. Ja, kein Problem. Tute. Tute dann. Wir nehmen noch 5 oder maximal 10 Wörter. Und dann ist das fertig. 5 oder 10 Wörter nehmen wir. Tute. Was mit E? Einladung. Oh, perfect. Einladung. Einladung. Next, wir nehmen noch 7 Wörter, vielleicht 8 oder. Okay, mit G sagt man glücklich und was noch? Unterschiedlich. Unterschiedlich. Mit G. Mit G. Glücklich kann man sagen. Gäste, Gürtel. Ich nehme dann Gürtel. Also ich nehme Nomen. Gürtel. Okay. Gürtel gibt es da. Die Lampe hat jemand gesagt. Einmal. Ich habe nicht genommen, aber hat man gesagt. इसीलिए आपको बोलने दे रहा हूं ताकि दोबारा नहीं बोल सको आप. Okay? Langweilig. Klar? Langweilig haben wir noch etwas? Was? Lebensmittel. Okay. Lebensmittel. Lebensmittel nehme ich dann. Lebensmittel. Okay? Liebe ist auch, aber okay, nochmals. Nächste ist dann Liebe. Alles klar, vielen lieben Dank. Mit Liebe. Was next? Lebensmittel und Liebe. Ist schon da. Ehepaar. Okay. Und? Einpacken. Ehepaar, einpacken. Einpacken ist dann auch Verb. Also ich nehme Ehepaar. Ehepaar. Das Ehepaar. Ja. Married couple. Ehepaar. Mit R. Radiergummi. Okay. Radiergummi. Der Radiergummi. Radiergummi. Und mit I. Information. Okay. International. Information. Intelligent. Ich nehme dann Information. Die Information. Okay. Noch 2 oder 3 Wörter. Mit N. Nächste. Nicht. Net. Okay. Net. Next. Wünsche. Also Wunsch. Der Wunsch. Wunsch ist nicht mit N. Nun. Okay. Nun. Null. Okay. Nacht. Okay. Natürlich. Dann nehme ich Nacht. So, other words were not adjective. So, I'm trying to take. Natur auch. Not. Ja. Natur. Die Natur. Mit R. Okay, Regen, aber auch Nomen. Ja, Regen. Reis auch. Reis. Raita geht nicht. Ja, und? Next. Redemittel. Redemittel ist gut. Und? Rot ist Adjective. Redemittel. Spoken stuff. Okay, vielleicht noch eins hier. Und? Noch eins. Noch eins. Mit L. Lust.
Landkarte या Lust, Landkarte, Leute, 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 Lampe, okay, ich nehme dann Lust, damit Tee am Ende kommt. Okay, die Lust. Okay, wir stoppen hier einmal. ये एक्सरसाइज मैंने क्यों की है आपको ये बताऊं. एक तो हमको नाउन लर्न होंगे. ये एक्सरसाइज मैंने आपको बहुत सारे वर्ड बोलने दिया और आपके वर्ड्स में कभी कोई काउंटिंग आ रही थी तो मैंने उसको अवॉइड किया. कभी कोई एडजेक्टिव आ रहा था तो छोटा एडजेक्टिव तो मैं अवॉइड करता हूं अंताक्षरी में. बड़ा एडजेक्टिव आए तो उसको लेते हैं हम लोग नॉर्मली. ठीक है. और अगर कोई वर्ड 3 अल्फाबेट से छोटा आए या 3 तक का आए तो उसको हम अवॉइड करते हैं. नहीं तो क्या वहीं खेलते रहते हैं हम, नुन गूट ना, इस तरह का. सो उसको हम लोग अवॉइड करते हैं. तो जब भी हम लोग अंताक्षरी खेलेंगे ग्रुप में तो आप इस बात का ध्यान रखना. आपको ये बताने के लिए यहाँ पे किया है हमने कि ग्रुप में भी हम लोग अंताक्षरी खेल सकते हैं ई लैंग्वेज स्टूडियो में अपने ग्रुप में. तो उस टाइम पे आप ध्यान रखना कि जो भी आपको वर्ड बताना है कोशिश करोगे आप कि नाउन यूज करें. ठीक है. एंड वेन एवर यू आर राइटिंग ए वर्ड पुट ऑल्सो आर्टिकल. कोष्टक में दे दो आर्टिकल. वर्ड तो यही माना जाएगा बट ट्राई टू राइट आर्टिकल ऑल्सो. Klar? Und wenn Sie einmal also ein Wort haben, sollten Sie auch versuchen, Sätze zu schreiben. कोई भी नया वर्ड आए तो आपको भ्रम होता है कि आ गया ये वर्ड तो मेरे को देखते ही आता नहीं है. उसका सेंटेंस बनाने की कोशिश करना है आपको, तब वो वर्ड आपको आएगा. सो हम लोग कभी भी अंताक्षरी करें तो इस चीज का ध्यान रखना आप. Klar? Und एस वेरे जेयर नेट. जब अंताक्षरी में खूब सारे वर्ड आ गए तो उसके बाद में आप उनमें से कुछ कुछ वर्ड पसंद करके एंड Sie sollten Sätze schreiben. Wir brauchen Redemittel. फॉर एग्जाम्पल किसी ने बोला रेडमिटल, ये प्लूरल के लिए ही काम में आता है. सो इसका आर्टिकल तो मेरे ख्याल से क्या होगा, ये प्लूरल का आर्टिकल हमेशा दी होता है वैसे तो. सो रेडमिटल, इट्स नॉट वन थिंग, इट्स ऑलवेज प्लूरल. रेडमिटल मीन्स स्पोकन स्टफ जो डे टू डे लाइफ में आप सेंटेंसेस यूज करते हो, जैसे das lohnt sich या im Dunkel sind alle Katzen grau. रेडमिटल डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं हम लोग. गोल्डन जो मोर्गन स्टुंडे हाट गोल्ड इम मुंडे रेडमिटल एंड रेडविंडुंग. कुछ कुछ कहावतें मुहावरे इस तरह के भी आते रहेंगे. Klar. So, jetzt wollen wir vielleicht nur 10 Sätze. अभी इन टोटल हम लोग इनसे केवल 10 सेंटेंसेस बनाएंगे. कोई भी बना सकता है, इनमें से कोई वर्ड यूज करना है. एंड देन विल टेक न्यू ग्रामर. 2 कनेक्टर भी लेंगे आज एंड फिर एक न्यू ग्रामर लेंगे. ich habe keine Zeit. Zeit is here. Ich habe keine Zeit. Okay, gut. Ich habe keine Zeit. Ich reise am Wochenende. Ich plane eine Reise. If you say ich reise, that is a verb and here reise is noun. Ich plane eine Reise für Wochenende. I am planning a journey. So reisen का मतलब है जर्नी करना, but this is journey. Die Reise. So ich plane eine Reise. Das ist Elefant. Okay? Ich kaufe Gemüse. Ich liebe Käse. Ich liebe Käsen. Der Käse. Ja, der Käse, aber wir diskutieren en Deklination auch später. Ich liebe meine Eltern. Ich liebe meine Eltern. Okay? Oder ich lebe bei meinen Eltern. Aber hier ist Liebe. Aber Liebe ist hier Nomen. Liebe मतलब प्यार, प्रेम. And lieben is to love. तो आप to love बोल रहे हो, वहां पे तो love नहीं बोल सकते.
Ich kaufe den Käsen. Okay. My hobby is ich habe eine Laue. Ich habe einen Löwen. Einen Leon. Yeah, I will explain you later on why einen Löwen. Löwen में भी n लग रहा है. Okay, I will explain you later on. N Yeah, plus N at the last. yeah. Endeklination heißt es. Okay, next. Es ist kalt, weil ich die Mantel kaufe. Ich kaufe Mantel, weil es kalt ist. ठंड बहुत ज़्यादा है मतलब कि कोट खरीदना। ओके, मैं कोट खरीद रहा हूं क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा है। Mein Hobby ist für Tanzen. Das ist mein neuer Mantel. Das ist mein neuer Mantel. Okay, Mein Hobby ist für Tanzen. mein Hobby ist tanzen, but it is not tanzen, it is tanz. This is noun. Tanzen. Okay. Und noch zwei. Und dann ist das alles. Ich habe eine kleine Tasche. Ich habe eine Tasche. Das ist meine Tasche. Das ist nicht mein Radiergummi. Ich, nochmals, Radiergummi. Das ist nicht mein Radiergummi. Okay, das ist nicht mein Radiergummi. Ich liebe meine Familie. Ich liebe meine Familie. बट यहाँ पे लीब है, नाउन है, वर्ब नहीं है. लीब इज विस्टिश एंड फैमिली नटुरलिश. आप समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ. जैसे आपने बोला इस लीब है माइने फैमिली है, तो मैंने ये सेंटेंस बनाने नहीं दिया. क्यों नहीं बनाने दिया? क्योंकि आप उसको एज ए वर्ब यूज कर रहे हो और यहाँ पे वो एज ए नाउन है. लीब इज विस्टिश, प्रेम बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है. नाउ इट इज नाउन. Ich habe die Liebe. Ich habe die Liebe. मेरे पास वो प्यार है. ओके, ओके, आजो. Und Liebe Die Endung. brauchen alle. Die Endung. Das die Endung, okay? Die Endung von dem Film war sehr lustig. Die Endung okay von dem Film war lustig, sehr lustig. Okay? Ich fahre Tuk-Tuk. Ich fahre Tuk-Tuk. या मैं 3 पहिया चलाती हूँ. टुक-टुक. Ich fahre Tuk-Tuk. Liebe ist wichtig. प्रेम बहुत इंपॉर्टेंट है im Leben. Ich brauche kein Tuk-Tuk. मुझे कोई 3 पहिया नहीं चाहिए. ओके, क्लियर. सो जो भी आप वर्ड देखो उससे सेंटेंस बनाने की कोशिश करनी है आपको. फिर आप ग्रिप में आएंगे, फिर आपको मजा आएगा और फिर आप आर्टिकल भी देखना चाहोगे. Das war es. Okay, jetzt stopp. Wir nehmen was anderes. Zwei Konnektoren nehmen wir. So lang und so bald. केवल 2 कनेक्टर लेंगे अभी हम and then something else. So bald und so lang. So bald, so lang. If we are taking connector, verb will come at the end. Okay? Das wissen wir jetzt. In A2, wir haben bis jetzt Konnektoren genommen und das Verb kommt am Ende. So bald, so lang. So bald, auf Englisch sagt man as soon as. जैसे ही. So bald. जैसे ही. जैसे ही. As soon as. So bald mein Mutter kommt, gehe ich. Ich gehe so bald meine Mutter kommt. Ich gehe, Komma, so bald meine Mutter kommt. I will go as soon as my mother comes. मैं माँ का वेट ही कर रही हूं कि जैसे ही मेरी मम्मा आई मैं चली जाऊंगी. या ich gehe so bald meine Mutter kommt. Ich verlasse das Haus
जो बाल्ड इश einen जॉब bekomme, मैं घर छोड़ दूंगा जैसे ही मुझे जॉब मिली. वेरी एक्साइटेड टू लीव द हाउस. Also ich verlasse das Haus. Ich verlasse das Haus. Sobald ich einen Job bekomme. Okay? As soon as he will come out of the gate, he will do it. हाँ, sobald aus dem Gitter kommt, tötet ihn. जैसे ही वो जेल से बाहर आएगा, ये उसको मार देगा. sobald aus dem Gitter, गिटर, जो जेल से बाहर आएगा वही उसको मार देगा. ओके, जो इसको मैं जो बॉल माइनस लेरेंगे ich komme, sobald जो बॉल माइनस लेरेंगे गेट. एक है टीचर या एक से ज्यादा है? एक है तो चाहे वो टीचर हो चाहे पापा हो, टी लगेगा. हाँ, इज्जत देने के लिए आप शायद ईएन लगा रहे हो. मैं इसको भूल गया इसके चक्कर में लगा दिया है. हाँ, ओके ओके, klar. Sobald ich einen Job bekomme, kaufe ich ein Auto. कार खरीदूंगा जैसे ही जॉब लगी. ओके, sobald देखो इधर लिया. So our formula before connector comma and just after the connector subject and verb at the end. This is the normal step. Now we will follow the rule actually. And now what did I say? Sobald ich einen Job bekomme, Yeah. kaufe ich ein Auto. Sobald. अगर sobald को इधर लोगे तो वर्ब दोनों डिस्टर्ब होंगी. फिर भी sobald ich einen Job bekomme, kaufe ich ein Auto. Ein Auto. जैसे ही मेरी जॉब लगेगी मैं कार खरीदूंगा. Ich kaufe ein Auto. Das ist ja ein Satz. Und ich bekomme einen Job. Das ist noch ein Satz. Es gibt zwei Sätze. कनेक्टर्स में हम लोग दो सेंटेंसेस को कनेक्ट ही तो करते हैं. Sobald ich ein Haus kaufe, heirate ich. पहले घर खरीद लूं फिर शादी करूंगा. Sobald ich ein Haus kaufe, heirate ich. Oder ich heirate. Ich heirate mit meiner Freundin sobald ich ein Haus kaufe. Okay, sobald, जैसे ही means the same time or as soon as. Im Moment kann man das auch manchmal im Moment sagen. Im Moment. Im Moment means उसी क्षण या as soon as, दोनों सेंस निकलते हैं उसके. उसी क्षण, तब का तब, जैसे ही पापा आएंगे मैं जाऊंगा. At the same time, this is the feeling. As soon as, वो जैसे ही एंटर करे मैं बाहर गया. जैसे ही जॉब लगी मैं निकला गाड़ी खरीदने के लिए. ओके, सो जैसे ही as soon as oder in diesem Moment, fast, die gleiche Zeit. This is the sense. Klar? Wir können Sie noch Sätze schreiben. So lang का मतलब है as long as. As long as. As long. जितना तुम चाहो,
जब तक तुम चाहो. In German, you can say die ganze Zeit. Die ganze Zeit. Die ganze Zeit. For example, du kannst bei mir wohnen, solange du willst. तुम मेरे यहां रह सकते हो जितना तुम चाहो, जितना तुम चाहो, जितना तुम चाहो, जब तक तुम चाहो, जब तक, जितना तुम चाहो. मे बी इसी तरह का इसका मीनिंग निकलेगा. विल ट्राई 2-3 सेंटेंसेस एंड देन वी विल अंडरस्टैंड एक्चुअली मीनिंग निकलेगा क्या. देखते हैं. सो डू कांस्ट बाय मियर वोनन, डू कांस्ट बाय मियर वोनन, solange du willst. इसका मतलब है कि किसी ने बोला कि मेरे भाई ने बोला कि भैया मेरे को किराए पे घर दिलाओ. मैंने कहा रहते हो तो भाई मेरा, तो मेरे पास ही रुक जा, गांव से आ रहे हो. नहीं भैया आपके पास तो रुक जाऊंगा, कितने दिन रुक जाऊंगा. अरे तेरी मर्जी हो उतना रुक. नहीं भैया मैं तो 1 साल रहूंगा जयपुर में. हाँ तो 1 साल रुक, क्या दिक्कत है. नहीं मैं तो फिर जर्मनी नहीं जाऊंगा जब तक फिर तुम्हारे पास ही रहूंगा. हाँ रह जा 2 साल 5 साल, जब तक तू चाहे, जब तक तू चाहे. सो so as long as du kannst bei mir wohnen, solange du willst, solange. Ich verlasse das Haus nicht, solange ich einen Job bekomme. पापा मैं घर नहीं छोड़ने वाला हूं जब तक मेरी जॉब नहीं लग जाए. Solange ich einen, ja, sobald ich einen Job bekomme, verlasse ich das Haus. Dann ist das kein Problem. Solange, as long as, sobald, as soon as. Solange. Solange hier bleibt, kann ich nicht studieren. जब तक ही है ये. तुम चाहो तो इस पर्टिकुलर सेंस में जब तक और जितना ही है इसका मीनिंग. solange hier wohnt, kann ich nicht lernen. जब तक ये इस घर में है मेरी पढ़ाई नहीं हो सकती. जब तक. die ganze Zeit मतलब ये जाए तब मेरी पढ़ाई हो. die ganze Zeit जब तक ये है. ich kann nicht lernen, solange hier ist. ich kann nicht lernen, solange here bleibt. Okay, try maybe some sentences. आपके दिमाग में कुछ सेंटेंस आ रहे हैं जिससे दोनों का फर्क महसूस हो. so bald, so lang. so lang. Wir würden Deutsch lernen, solange Sie unterrichten. Wir würden Deutsch lernen, solange Sie unterrichten. आ जाओ. जितनी देर आप पढ़ाओगे, 2 घंटे पढ़ाओगे तो 2 घंटे, 1 घंटे पढ़ाओगे तो 1 घंटे. Wir würden Deutsch lernen, solange. Solange bedeutet hier die ganze Zeit, as long as. आपकी मर्जी हो उतना पढ़ाओ. Solange. Okay, gut. Solange Sie hier sind, unterrichte ich Deutsch. Kein Problem. जब तक आप लोग बैठे हो हम भी पढ़ाते रहेंगे. Solange, die ganze Zeit. Solange wir glücklich sind. Ich brauche keinen Job, solange mein Vater mir hier, also alles erlaubt. मैं जर्मनी मैं जल्दी से जल्दी जर्मनी जाना चाहता हूं. ये कहना चाह रहे हो शायद. ये लॉन्ग टाइम नहीं है इसका मतलब.
इसका मतलब है दी गन्स साइट पूरे टाइम। आप बोलो कि जब तक मैं स्वस्थ हूं मैं जर्मनी में ही काम करना चाहता हूं। हाँ जो मैं जर्मन्स की सेवा करना चाहता हूं। Oh nein, Entschuldigung. Ja, so ich arbeite hart, solange ich gesund und glücklich bin. मैं जब तक स्वस्थ हूं खुश हूं मैं जर्मन पढ़ाना चाहता हूं। Solange ich gesund bin. Ich kann nicht Handy gesehen, solange mein Mutter ist hier. ओ मैं मोबाइल नहीं देख पाती जब तक मम्मा यहाँ है। या ich kann Handy nicht gucken, solange meine Mutter da ist. ओके gesehen नहीं sehen, मुडाल के साथ ओनली इन्फिनिटिव। या ich kann dein Problem verstehen. Klar, richtig. Und was noch? Ich fahre nach Deutschland, sobald ich meinen Ausweis bekomme. Aha, ich fahre nach Deutschland, sobald ich Ausweis bekomme. जैसे ही मुझे मेरा Ausweis मिला, sobald, das heißt as soon as, जैसे ही मिला गई जर्मनी। ओके मेरा जैसे ही B1 खत्म हुआ मैं भी जर्मनी चला। Ich fahre auch nach Deutschland, ich fliege nach Deutschland, sobald ich B1 सर्टिफिकेट bekomme। कह सकता है कई लोग इंतजार कर रहे हैं B1 का मिला और गए। या klar, so shopping is einkaufen, ja, oder shoppen, Samstag kommt, gehe ich für shoppen, okay, sobald Samstag, sie wartet auf Samstag, sobald Samstag kommt, geht sie einkaufen, einkaufen, as soon as means she is waiting for that, sobald. Und hier die ganze Zeit. Wir können lernen, solange wir wollen. Wir können lernen, solange wir wollen. जितनी हमारी इच्छा हो उतना हम, इच्छा हमारी 5 मिनट की है, 1 घंटे की है, so es gibt dann so. Okay, sie kann nicht laut sprechen, solange ihr Vater hier ist. वो जोर से नहीं बोल सकती जब तक उसके पापा यहाँ पे हैं। ओके klar. Ist das klar? Noch ein Beispiel. Sie kann nicht lauter sprechen, sobald ihr Vater hier im Haus ist. Solange ihr Vater im Haus ist. जब तक उसके पापा घर में हैं वो जोर से नहीं बोल पाती। Wenn der Vater, Ich habe noch ein Beispiel. ja bitte, sag mal. Wissen Sie Vikram? Vikram, Vikram und Betal? Vikram und Vetal, natürlich. Betal hat geflogen, sobald Vikram seinen Mund geöffnet hatte. Ja, ja, richtig. Vikram, Vetal fliegt, sobald Vikram spricht. Genau, interessant. Vetal fliegt immer wieder. Vetal fliegt. Ich weiß nicht, ob es Vetal fliegt, sobald Vikram also Vikram seinen Mund öffnet. Seinen Mund geöffnet hatte. Okay, oder Mund öffnet. Ja, das heißt immer wieder Präsenz. अदरवाइज ऐसे बोलना पड़ेगा कि वो उड़ गया जैसे ही उसने अपना मुंह खोला। Betal hat geflogen. Genau. Ja, Vetal ist geflogen oder war geflogen. Ja, richtig. Klar. Interessant. So lang und so bald. Das sind 2 Konnektoren. Ich hoffe, Sie verstehen. Und wenn Sie noch Sätze schreiben, dann verstehen Sie das komplett. Jetzt nehmen wir was anderes. Okay?
klar. Genau. Ist esse Laddu, sobald sie ja fertig sind. Genau. Heute kann ich das ja spüren. Okay, jetzt nehmen wir. Ist das klar? Sobald, so lang. Genau. Jetzt nehmen wir K2. Wir haben K2 in A2. Okay? In A1 hatten wir nicht. Aber es gibt ein Grammatikbegriff. K2. K2 ist für Wünsche. K2 एक कॉन्सेप्ट है जर्मन में, A2 में आपका बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. आपको आपकी कोई भी विश है, ड्रीम है, वो इससे पूरा तो नहीं होता, बट आप एक्सप्रेस कर सकते हो उसको, एटलीस्ट हो भी सकता है, राइट. K2 zum Beispiel, काश मेरे पास सोने की चम्मच हो, काश मेरे पास पैसा हो, गाड़ी हो, बंगला हो, काश मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स हों, काश. आप ये जो अपनी विश एक्सप्रेस करते हो, यू कैन एक्सप्रेस विद हेल्प ऑफ K2. K2 means काश. Is it like I wish I were me? Yeah, I wish I were moon. Yeah, das ist K2. Richtig. कोई भी विश हो सकती है. काश तुम बंदर हो, विश हो सकती है, राइट. कुछ भी हो सकती है, मतलब मेरे लिए भी हो सकती है, मेरी आप लोगों के लिए भी हो सकती है. काश मैं मदारी और तुम बंदर, हो सकता है. विश तो कुछ भी हो सकती है. सो K2 इज यूज्ड फॉर विश. जो विश है, विश मीन्स विश, आपकी इच्छा. K2 we use for okay, first of all we'll take only one point, wish. That can be real oder unreal. Real, unreal. विश जो है वो रियल भी हो सकती है. रियल का मतलब है जो फुलफिल हो सके. अनरियल है जो कभी हो ही नहीं सकती फुलफिल. हो सकता है ऐसी चीजें भी आपके दिमाग में आ जाएं. जैसे मान लो मैंने बोल दिया काश तुम बंदर हो. अब बंदर तो तुम हो ही नहीं सकते. विश तो कर ली मैंने, लेकिन वो पूरी नहीं हो सकती, राइट. नेक्स्ट जन्म का क्या भरोसा है, बंदर ही हो. हाँ, कॉकरोच बन जाए अगला, मतलब क्या पता वो तो. लेकिन अगर कोई विश करे काश मैं गाड़ी खरीद लूं, तो पॉसिबिलिटी तो बहुत है गाड़ी खरीदने की, तो गाड़ी खरीदने की. सो दैट इज कंसिडर्ड एज रियल विश. सो Wünsche real oder unreal. Wir brauchen zum Beispiel haben und sein, haben wir. पहले इन दो वर्ब से ट्राई करेंगे हम लोग, haben und sein. Haben verb you already know and sein also. So normal haben sein. Ich denke, ich soll das anders schreiben. Haben und. Okay. So haben, ich habe, du hast, er hat, es hat, sie hat, wir haben, ihr habt, sie haben and sie haben. haben verb. Präteritum, इसकी पास्ट फॉर्म, haben की पास्ट फॉर्म होती है hatten. Ich hatte, du hattest, er hatte, es hatte, sie hatte, wir hatten, ihr hattet, sie hatten and sie hatten. This is preteritum. ये पास्ट फॉर्म है. हर एक वर्ब की कोई ना कोई पास्ट फॉर्म भी होती है
past. Past is called preteritum. Preteritum. This is presence. Okay, preteritum is past and this is presence. ये present है और वो past है. Entschuldigung, das habe ich nicht schon geschrieben. Präsenz und Präteritum. Dann haben wir K2. So जैसे वर्ब का प्रेजेंट फॉर्म होता है, वर्ब का प्रेटेरिटुम मतलब सिंपल पास्ट फॉर्म होता है, ऐसे ही एक कास्वाई फॉर्म भी होता है वर्ब का, कास्वाई, जिसकी हम लोग आज बात कर रहे हैं. हर एक वर्ब की कास्वाई फॉर्म है, हर एक वर्ब की. सो पास्ट लर्न करो पहले तो, फिर कास्वाई फॉर्म लर्न करो. हाँ नहीं, लेकिन अच्छी बात इसकी ये है, अच्छी क्या बहुत ही अच्छी बात है कि जो कास्वाई होता है वो प्रेटेरिटुम की तरह दिखता है, सिमिलर सा दिखता है वो. सो कास्वाई फॉर्म, बहुत लोग तो कहते हैं कि प्रेटेरिटुम में से ही निकालते हैं कास्वाई फॉर्म. सो फॉर एग्जाम्पल हियर द वर्ब इन कास्वाई बिकम्स hätten. Ich hätte, du hättest, er hätte, es hätte, sie hätte, wir hätten, hättet, hätten and hätten. सो बहुत ही सिमिलर है. आपने उमलाउट लगाया और ऐसे लगता है हो गया कास्वाई. हैटन जाइन की ओर लिखूंगा, देन विल मेक सेंटेंसेस. दो ही वर्ब चलेगी, और भी होती होंगी. मैंने अभी बोला आपको कि हर वर्ब का कास्वाई होता है, हर वर्ब का कास्वाई होता है, अभी बोला. मुझे नींद कैसे आएगी, हर वर्ब का कास्वाई भी है. चिंता मत करो. प्रेजेंस, प्रेटेरिटुम और कास्वाई. अगेन ये हाबन वर्ब का हो गया, ये हुआ हाबन का. नाउ वी आर टेकिंग जाइन. जाइन का भी प्रेजेंस, प्रेटेरिटुम और कास्वाई. कास्वाई फॉर्म होगा. जाइन का प्रेजेंस इस बिन डू बेस्ट, इस बिन डू बेस्ट, एयर इस्ट. हेलो, इस बिन इस शुड बी हियर, Entschuldigung, nein, bleib hier. Hier schreiben wir sein. Ich bin, du bist, er ist, wir sind, ihr seid, sie sind und sie sind. जाइन वर्ब का नॉर्मल फॉर्म जो आपने खूब यूज किया है, अक्सर यूज किया है. नाउ प्रेटेरिटुम फॉर्म मतलब सिंपल पास्ट. इसका सिंपल पास्ट होगा इश्वार. ओरिजिनल फॉर्म वारन, इश्वार. डू वार्स्ट, वार वार वार. वियर वारन, ihr wart, waren und waren. Okay, K2 form will be with umlaut. Wären, ich wäre, du wärest, er es sie wäre, wir wären, ihr wäret,
Entschuldigung. Where is G? Where? Dreimal wäre, na? 3 times we need wäre. He, she, it तीनों के लिए सेम ही होगा. So wäre, wären. There is some difference, but it is like this only. Wären. K2 Form. Haben, sein. K2 Form. Okay. Why we use K2? Right now we are using K2. Yes, wish प्रकट करने के लिए. Correct. To express your wish. Was wollen Sie? I wish I could. So, K2 für Wünsche. Das kann real oder unreal sein. It can be real or unreal. K2. So, haben जहां भी यूज करते थे अभी तक, ईयर में जिन बड़ा कैपिटल इसको ऊपर ईयर में जाइड, तो जाइड आएगा ये, तो इसको कैपिटल लिखो ना. ईयर के साथ जाइड ही होता है. ओके. सो नॉर्मली यू से आई एम. K2 का मतलब है विश, मीन्स इट इज नॉट द फैक्ट. हाउ यू डिफ्रेंशिएट? ये जो haben है, haben, this is the fact. If I say ich habe viele Studenten, ich habe eine kleine Familie, ich habe einen schönen Kuli, ich habe etwas. So das ist dann Tatsache. ये फैक्ट है. हम लोग haben यूज करते हैं फैक्ट के लिए. ich habe फैक्ट के लिए. एंड दिस इज ऑल्सो फैक्ट. ich hatte, I had, मेरे पास पहले कार थी, अब मेरे पास साइकिल है. सो ich hatte ein Auto, it was a fact. स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट. हम लोग फैक्ट की बात करते हैं तो हम लोग चाहे वो प्रेजेंट में बात कर सकते हैं, बट पास्ट में भी बात कर सकते हैं. आई हैड, पहले मेरे पास पैसे बहुत होते थे. ich hatte viel Geld, so this is a fact. बाद में कुछ गड़बड़ियां हुई. ich habe ein Laptop, früher hatte ich Computer, अभी मेरे पास लैपटॉप है. ये तो स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट है, और पहले मेरे पास कंप्यूटर था. आई हैड. सो haben und hatten both are statement of facts, but K2 is not fact, it is just a wish. ये फर्क है दोनों में. कई लोग इसको ये नहीं समझ जाएं, इसलिए दोनों लिखे हैं मैंने. ठीक है. ये पास्ट है. आई हैड, पहले मेरे पास एक साइकिल थी. ich hatte früher ein Fahrrad, तो साइकिल तो थी. मेरे दोस्तों से पूछ लो, घर वालों से पूछ लो, थी वो, तो फोटो दिखा देता हूं. सो ये फैक्ट हो गया, स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट. ich bin Lehrer, मैं टीचर हूं, ये तो फैक्ट है. आई एम ए टीचर. मैं टीचर थी. ich war Lehrerin, यस, तुम पहले टीचर थी. सो ये भी स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट हो गया. ये दोनों स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट हैं. यस, बट अगेन दिस इज विश. काश मैं टीचर बन जाऊं. ich bin
जो नॉर्मल स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट बोल के देख लेना, उससे यह पता चल जाएगा कि जाइन लगेगा या हाबन। वो स्टेटमेंट जाइन चाहिए उसको या हाबन, वो पता चलेगा। जैसे मैं बोलूं आई एम टीचर, तो जाइन लगेगी इश बिन लेरर, और अब मेरे को विश करनी है काश मैं टीचर बन जाऊं, इश वेरे लेरर, इश वेरे लेरर, इश वेरे लेरर। इसमें कौन सा आर्टिकल चेंज नहीं होता है? आर्टिकल की जरूरत कहां है, मैं काश टीचर बन जाऊं। डेर लेरर आ रहा है, मैं मेल हूं इसलिए मैं बोलूंगा काश मैं टीचर बन जाऊं, तो मेल टीचर ही बनना चाहता हूं शायद मैं। या फिर मान लो मैं टीचर हूं, मेल टीचर हूं, और मैं सोचूं काश मैं फीमेल टीचर होती, इश वेरे लेररिन। हाँ हो सकता है भाई कोई ऐसे विश करे, शायद यही कहना चाह रहे हो, इश वेरे लेररिन। तो फीमेल अगर कोई बनना चाहे तो लेररिन हो जाएगा। मतलब जैसे हाबन के अंदर अपन जैसे चेंज अकुजाटिव ले रहा था, इसमें भी वैसे ही रहेंगे। यस, ये अगर अकुजाटिव ले रहा है तो इसमें भी अकुजाटिव ही चलेगा, बिकॉज ओरिजिनली उसी से तो है ये। जैसे ओके ये पूछ रहे थे आप, ओके ठीक है। वैसे मैंने जानबूझ के उस पर आर्टिकल क्यों नहीं लगाया, क्योंकि प्रोफेशंस के साथ आर्टिकल नहीं लगाते जर्मन में। जैसे इंग्लिश में बोलते हैं आई एम ए टीचर, ए टीचर बोलते हैं, बट जर्मन में नहीं बोलते। जर्मन में बोलते हैं इश बिन लेरर, ए नहीं लगाते, इसलिए मैं नहीं लगा रहा था। ठीक है, आपने बोला कि आई हैव अ कार या आई हैव ए पेन, ये तो स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट है, मेरे पास एक स्टिफ्ट है। इश हाबे आइनन स्टिफ्ट, वो तो दिख रहा है, आपको दिखा रहा हूं मैं। लेकिन काश मेरे पास एक सोने का पेन होता। ये तो आई हैव ए पेन, स्टिफ्ट है मेरे पास, लिखने का कुछ तो टूल है मेरे हाथ में, ये तो है। लेकिन काश मेरे पास एक गोल्डन पेन होता, तो मैं क्या बोलूंगा काश बोलने के लिए? हटे या हेटे, इसीलिए दोनों लिखे हैं मैंने, इश हेटे। अगर हटे में ले जा रहे हो तो इधर घसीट रहे हो आप मेरे को, राइट ना, कोई दिक्कत नहीं है, तुम कंफ्यूज नहीं हो, इसीलिए दोनों लिखे हैं मैंने। मुझे भी पता है क्या क्या कर सकते हो तुम लोग, डोंट वरी, क्योंकि मेरे को पता है मैं क्या क्या करता था, उसी से मुझे आइडिया मिले ये। सो मेरे को टीचर ये बताता था, मैं ये समझ जाता था, मुझे ये बताता था तो मैं ये समझ जाता था, तो मैंने कहा ये दोनों ही लिख देता हूं। तो आप ये समझो, तो मैं कान पकड़ के इधर लिया हूं वापस। ये हटे है, ये हेटे है हेटे। इश हेटे आइनन गोल्डन स्टिफ्ट, काश मेरे पास एक सोने का। सो अगर मान लो उसमें आपके एडजेक्टिव चलता था कोई, वो एडजेक्टिव अभी भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। वो विश में चेंज होगा तो वो हेटे हो जाएगा, काश वाई फॉर्म लगेगी, काश मैं तू बन जाऊं, इश वेरे डू। हाँ कोई दिक्कत नहीं है। अब डिश मत बोल देना, क्योंकि जाइन वर्ब है वेरन, ओरिजिनली तो जाइन है ना, इसी के रूप हैं ये तीनों। और जाइन के बाद तो नॉमिनेटिव भी आ सकता है, तो मैंने इश वेरे डू बोला, काश मैं तू बन जाऊं, इश वेरे डू। डिश नहीं बोल सकता मैं, क्योंकि नॉमिनेटिव के बाद तो नॉमिनेटिव भी आएगा ना। और जब मैं कह रहा हूं काश मैं तू हो जाए, इसका मतलब है तू और मैं तो एक ही हो जाए, फिर समझ रहे हो ना आप, क्यों तुम ही तो मैं बन जाऊंगा फिर, तो ये दो अलग पर्सन रहेंगे ही नहीं। काश मैं तू बन जाऊं, काश मेरे भी चश्मा, ओ नहीं अंशुल टूट में लाइट, नहीं कोई शाम के टाइम कोई बोल नहीं दे तथास्तु, राइट। मेरे तो चश्मा है तो मुझे डर नहीं है। वैसे अगर मान लो किसी के चश्मा नहीं है, काश वो कहे मेरे चश्मा हो, इश हेटे आइने ब्रिले, हेटे आएगा फिर। और कोई ऐसे बोल दे इश हटे आइने ब्रिले, इसका मतलब मेरे पास पहले चश्मा होता था। इश हेटे डोरेमोन, इसका मतलब है काश मेरे पास डोरेमोन हो। अब इसमें फर्क है क्या? इश वेरे डोरेमोन, इश हेटे डोरेमोन। इश वेरे डोरेमोन अगर कोई बोल दे डोरेमोन, इश वेरे डोरेमोन, इसका मतलब है कि काश मैं खुद डोरेमोन बन जाऊं। ठीक है, फिर ले चलो आपको कोई दूसरे ग्रह पे, वो ले जाता है ना,
तो इस वेरे का मतलब है मैं खुद ही बन जाऊं। वेरे यूज कर रहे हो, इसका मतलब आप खुद बनना चाहते हो। हैटे का मतलब है आप उसको पाना चाहते हो, हासिल करना चाहते हो। इश हैटे ein großes हाउस, हैटे विश, काश मेरे पास हो, ओके, बड़ा घर। अब आप बनाओगे सेंटेंस हैटे और वेरे के पहले। इस टाइम पे जो भी आपकी विश है आप बोल दोगे तो पूरी भी हो सकती है। यस प्लीज ट्राई। Hat a unicorn. इश हैटे यूनिकॉर्न, इतनी जल्दी बोलिए कि कोई और नहीं ले जाए। तथास्तु, इश हैटे यूनिकॉर्न, ओके गुड। फरजू खंजी बेटे ट्राई। Is hat ein Auto? इश हैटे ein Auto, तथास्तु। Is hat eine Geld Auto? Ich hätte viel Geld. फील नहीं फील, इश हैटे फील गेल्ड, राइट। Ich hatte Is hat eine Geld Auto? सोने का So नहीं. तो गोल्डनेस आउटो, माइन गॉट, आजो तथास्तु। इश हैटे ein goldenes Auto und er hätte viel Geld, तथास्तु। ओके गुड। Is that a not Deutschland fliegen? हैटे नहीं होगा, फ्लीगन की बात नहीं करेंगे अभी, वर्ब यूज नहीं करेंगे कोई इनके अलावा। मैं कुछ बनना चाहता हूं या मैं कुछ पाना चाहता हूं, दो ही बात करेंगे अभी। ich wäre आप ये कह सकते हो काश मैं जर्मनी में हूं। मान लो कोई बोले इस बिन इन डॉइचलैंड, वो तो फैक्ट हो जाएगा। मैं जर्मनी में हूं, इस बिन, मैं जर्मनी में था तो मैं बोलूंगा इस वार इन डॉइचलैंड। आप कह रहे हो काश मैं जर्मनी में हूं, इस वेरे इन डॉइचलैंड, ich wäre Lehrerin. इस वेरे लेरिन, काश मैं टीचर बनूं, ओके हूं। नेक्स्ट, या वेर इज ड्रन, बिटे शोन, आजो। इश वेरे इन जयपुर, रिंकी वो बिश डू देन, हो कहां तुम? इन कोटा, ओके। इश वेरे इन जयपुर, काश मैं जयपुर में हूं। दस वेरे टॉल, तो बहुत ही बढ़िया रहे। स्वाति, प्रियंका, इरव्युंश है, अपने विश बोलो। If I want to say, काश मैं एक दिन के लिए मेरे कंट्री का प्राइम मिनिस्टर बन जाऊं। हाँ तो बोलो, एक दिन के लिए क्यों, जब इच्छा है तो पूरा खुल के बोलो। इश वेरे प्रीमियर मिनिस्टर, आगे एक दिन के लिए बोलना है तो फ्यूर आइनन टाग तो बोल ही सकते हैं। फ्यूर आइनन टाग, इश वेरे प्रीमियर मिनिस्टर फॉन डॉइचलैंड फ्यूर आइनन टाग। Oh, Premierminister in Deutschland gibt es nicht. Also Kanzler meinte ich. Entschuldigung. Ja, also ich wäre Premierminister von Indien für einen Tag. Indian Prime Minister बोल सकते हैं। या प्राइम मिनिस्टर को प्रीमियर मिनिस्टर भी बोलते हैं और मिनिस्टर प्रेसिडेंट भी बोलते हैं। मिनिस्टर प्रेसिडेंट भी प्राइम मिनिस्टर को ही बोलते हैं, और सीएम को भी, मुख्यमंत्री को भी यही वर्ड है उनके लिए भी, प्रीमियर मिनिस्टर और मिनिस्टर प्रेसिडेंट। इश हैटे सेसवाई सर्टिफिकेट, ओके गुड, तथास्तु। नजाकत, इश वेरे इन इंडियन, काश मैं इंडिया में हूं, तथास्तु। तुषा, हाटे का मतलब पुरानी बात बता रही हो, तुम्हारे पास पहले था हैटे, ओके। इश हैटे ein großes हाउस, ओके गुड। अनुजा, तुषार, ihre Wünsche? Ich wäre CEO. Ich wäre CEO, ओके। या अनुजा, प्रियंका, ich hätte Urlaub, काश छुट्टियां हो। Ich wäre Kim Jong-un. Kim Jong-un, ich, nein, ich wäre, also राइजन, इसमें आपको दूसरी वर्ब यूज करनी पड़ रही है, इसलिए इस सेंटेंस की बात बाद में करेंगे। इश, या Is hat language studio chef? ich wäre Chef von E-Language Studio, तथास्तु। Ich wäre eine tolle deutsche Lehrerin und ich hätte meine eigene Institut. Ich hätte mein eigenes Institut, तथास्तु। ओके, Entschuldigung, इसकी जरूरत नहीं है देव,
Okay. Ja, Entschuldigung. Ja, next. Ja, das machen Sie, das werden Sie schaffen. Kein Problem. Natürlich. Ich hätte großes Haus. Groß लगाओगे तो एडजेक्टिव एंडिंग तो आएगी. Okay, klar. Ja, alle haben eine, सबकी एक एक इच्छा पूरी हुई है ना, मतलब ich hätte ein großes Flugzeug, das Flugzeug, ich hätte ein großes Flugzeug, बट उसके लिए घर भी होना चाहिए, इसलिए ich hätte ein großes Haus auch, damit ist das auch parken kann. Klar, okay, gut, ja, किसी ने कुछ बोला. काश मेरी मदर मेरे पास हमेशा रहे. Meine Mutter wäre immer bei mir. By mir. तथास्तु. Meine Mutter wäre immer bei mir. Okay? Ja. ये schon. So wäre und hätte हुआ. अब हम लोग थर्ड बात करते हैं. ये तो हुई केवल इन दो वर्ब्स. विश केवल दो पे आके रुकती नहीं. तुमने जो भी बोला है ना, तुम लोगों को ये मिल जाए तो फिर भी तुम और विश की, या एक स्टेप आगे चले जाओगे. राइट. सो इसके अलावा हैटे और वेरे से तो दुनिया चलती भी नहीं एक्चुअली. आपका मन करता है शॉपिंग करने का भी, आपका मन करता है, वेल ट्राइज है अभी बोला उसने कि काश मैं वर्ल्ड की जर्नी करूं ना, काश हमारा घर बिक जाए. नहीं Entschuldigung, नहीं. हाँ, मतलब हम एक बड़े घर का प्लान कर रहे हैं, ये बिकेगा तो वो दूसरा आएगा ना, इसलिए. ओके. सो कुछ आप बेचना चाहते हो, कुछ आप खरीदना चाहते हो, कोई भी एक विश है तो वो इन दो में बंध नहीं सकती. समटाइम्स वी नीड सम वर्ब्स. उसके लिए हमको एक और वर्ब लर्न करनी पड़ेगी, दैट इज werden. And past would be wurden. Und K2 will be würden. K2 will be then würden. I should write here. To become better. Yes, to become होता है वैसे तो, बट इसको become के साथ जोड़ना नहीं है अपन को. एक बार conjugation normal इसके साथ ich werde, du wirst, wird, werden, then werdet, then werden and werden. Okay, das ist dann Original. Werden Präsenz. आ जाओ. Wurden ist Präteritum and das ist dann K2. So second form will be then wurde. Ich wurde, du wurdest, wurde, wurden, wurdet, wurden. This is done इसी की presence form preteritum, but we need K2 form. That would be würde. Ich würde, du würdest, SG würde, würden, würdet, würden. Das ist dann. Ja, bitte. Ja, natürlich.
bekommen wir. Kein Problem. Ja, wiedersehen. Ja, sicher ist. Das kommt automatisch. Also das ist Präsenz, das ist Präteritum, aber wir brauchen das hier. Würde. And we use würden if there is another verb. वैसे तो कास्वाई फॉर्म अगर आपको पता है तो आपको इसकी जरूरत नहीं है, फ्रेंकली स्पीकिंग. एंड कास्वाई में भी, कास्वाई जैसे मैंने आपको बोला हर एक वर्ब का कास्वाई भी होता है, तो हर एक वर्ब की कास्वाई फिर तो लर्न करनी पड़ेगी. ऑफ कोर्स कर सकते हो आप लोग चाहो तो, हर एक वर्ब की कास्वाई होती है. फॉर्मूला तो जनरली जो पास्ट है, जनरली कास्वाई फॉर्म प्रिटेरिटुम से निकलती है, उसमें उमलाउट लगा दो तो ज्यादातर पत्थर सही जगह पड़ेंगे आपके. समझ रहे हो आप? अगर आपको पास्ट फॉर्म आती है, किसका मतलब कास्वाई प्रिटेरिटुम की तरह नहीं होगा, उनको मैं आपको बता सकता हूं. कुछ एक ऐसे स्पेशल केसेस भी हैं, राइट. बट ज्यादातर कास्वाई ये समझ लो. देखो इसमें भी अपन ने कुछ खास किया नहीं है, इसमें उमलाउट लगाया है मैंने, यहां पे थोड़ा बहुत चेंज जरूर था. इसका वेरे का वेरेस्ट किया है, ई भी लगाया है, राइट. वार का वेरे हुआ है, इसमें थोड़ा चेंज हुआ है, बट ज्यादातर चेंज होता ही नहीं, ज्यादातर केसेस में चेंज होता नहीं. बट अगर मान लो आप ये चाहो कि हर एक का मेरे को तो कास्वाई पता चलना ही चाहिए, तो या तो आप ट्राई करके डिक्शनरी में चेक करोगे पास्ट फॉर्म पे उमलाउट लगा के, तो आपका सही जाएगा. या फिर यहां पे स्पेशल केसेज कुछ एक है भी, यहां पे ज्यादातर मिलते ही है. हटे का हिटा, ड्रिफ्टे का ड्रिफ्टे, ज्यादातर का तो मिलता ही है, बट यहां पे कुछ अजीब से भी है, कुछ अजीब से है. फॉर एग्जाम्पल ये देखो इधर, ये स्पेशल केसेस हैं. गेहन का गिंग भी होता है एक, आई शुड राइट दैट टू. गेहन फॉर एग्जाम्पल, गेहन का कास्वाई गिंग, ये वाले स्पेशल केसेस हैं. मतलब यहां तो पास्ट में ए आ रहा है, बट कोई इधर ए आ रहा है, तो अलग ही हो गया मामला. बट हाल्फ का हिल्फ है, इस हिल्फ है, काश मैं तुम्हारी मदद करूं, इस हिल्फ है डियर. हाँ, स्टांड, स्टेहन का स्टांड, ये हो गया स्टुंडे. बट ये तो स्पेशल केसेस हैं. अब आप या तो इन स्पेशल केसेस को लर्न कर लो और बाकी पास्ट में उमलाउट लगा दो, तो कास्वाई हो गया. टफ तो नहीं है. देखो मुंह से खाना भी ढंग से निकल नहीं रही. हाँ सर कर लेंगे. पहले जो इरेगुलर वर्ब थी उनमें वैसे चेंज हो रहा है, वैसे बनेगा उनका. जो भी पास्ट है ना, पास्ट में जनरली उमलाउट लगने से कास्वाई बन जाएगा. और ये स्पेशल केसेस है, स्पेशल केसेस ये हैं, और जनरली पास्ट पे उमलाउट लगा तो कास्वाई बन जाएगा. बट इससे अच्छी बात बताता हूं, आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है, राइट. आपको ये सब लर्न करने की जरूरत नहीं है. कूल. कितने जो आई बस ये याद रख लो कास्वाई. टिप तो आपको ये टिप ही है. नोट नहीं किया सर. मोमेंट. ओके, वो तो गया, बट कोई बात नहीं, उसको वापस लाएंगे. ये या तो सारी आप लर्न करो, और अगर आपको लगे कि इतने सारे कौन करेगा, तो आपको वास्तव में करने की जरूरत ही नहीं है. ये तो आपको करने की जरूरत ही नहीं है. अगर आपने इस एक को कर लिया ना, इन दो को प्लस इस एक को, तो बाकी का किसी का कास्वाई लर्न करने की जरूरत ही नहीं है. आप व्यूडन प्लस इन्फिनेटिव वर्ब लगा दो, व्यूडन प्लस लास्ट में इन्फिनेटिव वर्ब, बीच में जो भी आएगा वो आएगा. यहां पे इन्फिनेटिव वर्ब, जैसे मान लो उन्होंने बोला काश मैं
घूमू, दुनिया घूमू, वेल्ट राइजे माखन। वेल्ट राइजे माखन का मतलब है दुनिया घूमना। तो इश व्यूडे वेल्ट राइजे माखन, व्यूडे काचवाई यहीं पे हो गया, बस आगे की माखन एज इट इज। सिंगर बनने के लिए तो ऑलरेडी यहीं पे है ना, इश वेरे। वेरे का मतलब ही है टू बी, इश वेरस जेंगर, तो ये तो यहीं हो गया काम तुम्हारा, वहां तक भी जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन मान लो तुम बोलो कि काश वीकेंड हो तो मैं कपड़े धो लूं, मान लो सपोज कोई सोच सकता है इस व्यूडे आम वोखन एंडे वैसे वाशन, तो व्यूडे के साथ वाशन लग सकता है। अब कुछ अपनी विश बाकी की जो बच गई वो सब बोल सकते हो आप इसकी हेल्प से। व्यूडे प्लस इन्फिनेटिव। इस व्यूडे मिट माइनम फ्रेंड ट्रेफन, काश मैं मेरे फ्रेंड से मिलूं। इस व्यूडे मिट माइनम फ्रेंड ट्रेफन, ट्रेफन इन्फिनेटिव फॉर्म एज इट इज ले ली मैंने व्यूडे के साथ, हो गया काम। यस, नाउ इट्स फाइन। इस व्यूडे फ्लीगन वर्ब, जैसे ही इनके अलावा आपके दिमाग में कोई भी वर्ब आती है, इनके दिमाग में अभी आई फ्लीगन, तो फ्लीगन हो चाहे कोई भी वर्ब हो इनके अलावा, तो व्यूडे प्लस इन्फिनेटिव से बनाएंगे। इस व्यूडे नाक डूशनान फ्लीगन, या इस व्यूडे सुअर शू लगे हैं। इस व्यूडे गेहन आ गया ना, तो या तो कासवाई, या तो इसकी कासवाई फॉर्म आपको पता हो, इस गिंगे शुअर शूल है। अब वो गिंगे फिंगे व्यूडे फ्यूल्फ है, ये सारे याद नहीं हो अपने, हैं किंट है, ये अजीब अजीब सी भी हैं कई, तो उसका पंगा पालो ही नहीं। तो सिंपल इश व्यूडे शुअर शूल गेहन, काश मैं स्कूल चली जाऊं, क्योंकि कोरोना में तो घर से लेनी पड़ रही है, तो ये एक विश होगी गेहन। या प्रियंका जागमाल, Ich würde nach Disneyland gehen, fliegen, fahren. Okay, Swati, Tushar. So, ich würde nach Indien fliegen. Ich würde nach Indien fliegen. Okay, gut. Und wir würden alle nach Deutschland fliegen. Okay. Ich würde meine Eltern besuchen. Er würde seine Eltern besuchen. Ja? Okay, Anuja? Kirti? Sag bitte. Ich würde ins Gebirge fahren. Okay? पहाड़ों में घूमूं, पहाड़ों में जाऊं. Okay, klar? Sir, if I want to say, if you today only corona gets over, like खत्म हो जाएगा। हाँ, तो आप इसको ऐसे बोलो कि खत्म होना ना जाइन। सो कोरोना वेरे आजो वेग, कोरोना वेरे वेग, काश वो कोरोना चला जाए, तो उसमें व्यूडे की जरूरत ही नहीं है। राइट। Deutschland hat eigentlich Katastrophe. Ja, तथास्तु। Entschuldigung। अरे जर्मनी के तो बहुत बुरे हाल है, इंडिया से भी बहुत बुरे हाल है। अभी 50,000 से 70,000 के बीच में केस आ रहे हैं ना। स्वाति, अभी जर्मनी में होना तुम? No, sir. जर्मनी में कौन है आप में से? कीर्ति है? Yes, sir. और कौन है कीर्ति के अलावा? प्रियंका एंड कीर्ति दोनों जर्मनी में है। सो अभी तो वहां पे बहुत केसेस आ रहे हैं। या लॉकडाउन नहीं है, बट हाँ हाँ ऐसे। ओके, इंडिया में तो सब खुला है, एलियन ओ शार्ड है। या
wir wären gesund. Ja, schade. Ja, das habe ich auch eigentlich in Nachricht gesehen. Klar. Ja. Ja, aber restrictions हैं, तभी आप जा सकते हो. नर्सिंग वालों के लिए तो ऑफर कर रहे हैं जरा, एक महीने में वीजा भी निकाल के दे रहे हैं. हाँ नहीं तो उन्हीं की तो चाहिए ना, इसलिए दे रहे हैं ताकि वो हाँ इसीलिए वो दे रहे हैं. नर्सिंग वालों को छूट इसलिए दे रहे हैं ताकि वो उनको ठीक करें. उनकी केयर भी तो करने वाले चाहिए ना वहाँ पे. लोग बीमार हो रहे हैं तो. सर इसकी डिमांड तो वहाँ बहुत ज़्यादा है। यस कोई जाना नहीं चाहता ना वहाँ पे, हालत बहुत गंदी. समझ गया मैं, इसीलिए बुला रहे हैं वो भी. घर वाले जाने नहीं दे रहे. हाँ तो वो भी घर वाले भी चाहते हैं हम जिंदा रहें सब. ऑफ कोर्स das wäre ja die Situation. Okay, 5 more sentences please. Und dann hätten wir ich würde am Wochenende Freunde treffen. Okay? Ja. Und 4 Sätze, noch 4. 4 सेंटेंस बनाने हैं और उसके बाद में आप ग्रुप में बनाओगे. Das wäre toll. Wir wären unterwegs. Ich würde Dal Bati Churma essen. Okay? Ich würde Party machen. Machen आ गया तो würde automatically. Ja. Aha. Ich würde mitmachen. Ich würde mitmachen का मतलब I would like to join you. Okay? Ich würde Fußball spielen. Noch 2. 2 more. Ich würde Cricket spielen. Ich würde ja etwas kochen. Das Pakoda kochen. Und dann würde ich das gleich essen. Okay? Klar. Richtig. Also K2 und 2 Konnektoren. जो K2 के सेंटेंस बनाए हमने और कनेक्टर्स, इनसे सेंटेंस बनाने ग्रुप में.